पूरा दुनिया का मदर टंग तमिल है, लेकिन उसको बिल्कुल गट्टे में डालने की बात करते हैं राहुल गांधी जी। एडीएमके डीएमके ये सब जो है ना, इस तमिलनाडु को सत्यानाश किया हुआ है। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। राज्य में 39 लोकसभा की सीटें हैं और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के शोर के बीच में हमने तमिलनाडु की जनता के मन की बात जानी और ये समझने का प्रयास किया कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है। आइए दिखाते हैं आपको लोगों की प्रतिक्रियाएँ। हालांकि बहुत से लोगों ने तमिल में प्रतिक्रिया दी है, तो हो सकता है कि उत्तर भारत के लोगों को वो समझ नहीं आए। ये भी हो सकता है कि जो अंग्रेजी में प्रतिक्रियाएं आई हैं वो कुछ और दर्शकों को समझ नहीं आए। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फाइट है वो त्रिकोणीय है। हम आपको बता दें कि जो कांग्रेस और डीएमके साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और अगर बात करें एआईडीएमके की तो वो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं बात करते हैं बीजेपी की तो वो एनडीए के बैनर तले कई दलों को साथ लेकर, क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चुनाव मैदान में है। आइए जानते हैं लोगों की प्रतिक्रियाएं। There are winning candidate once going for here, right? Yeah. Can you see here? And all know two state is the owner, right? So they are decided and resigning and joining to the saving for the person, because the counter is going to be the 100%, right? All the police, everything. But here we have to plan every man going to be a winner, win to achieve. And what are I saying? அது அவங்க தான் சொல்லணும். They are Chennai South is facing many civic issues like flood. Yes, see, here only not a problem. See, here problem. See, And flood is every year problem, no? not every problem. What I am trying to say? வாரிசு வீடு கிடைக்கல. ஓகே, வாரிசு வீடு கிடைக்கல, அங்கே வீடு கட்டிக்கிறானுங்க, எல்லாமே ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கானுங்க. அது நியாயமாக யாருக்குமே கிடைக்கல. அது எப்போ தமிழில் பேசலாமா உங்கள்கிட்ட? ஐ வாண்ட் டு ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஒரு வாட் எவர் தே வாண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அந்த ரிசர்வேஷன் இஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் டு கம்ப்ளீஷன், பிகாஸ் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த ஒர்க் ஆல் ஆர் வெயிட்டிஙg ஃபார் த ஷெட்யூல். That's what only we are looking. Okay. So, how's your reaction on the coming election? தமிழ் தான், ஒன்லி தமிழ் தான். யார் ஆண்டானா இப்போ வரணும்னா இந்தியாவும் தமிழ், இந்தியா நல்லபடியாக இருக்குன்னா நல்ல பிரதமர் வேணும் இந்தியாவுக்கு. இந்த நல்ல பிரதமர் வேணும். இனிமேல் எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு, கெட்டி குடிச்சேரா போச்சு. நல்ல பிரதமர் வேணும். நல்ல பிரதமர் வேணும் இந்தியாவுக்கு. What is saying? He is a very nice person. He analyzes for the whatever in world-wise. Whatever the scenario in world-wise is a very great man. He after giving more than 92% scenario, all of a loan, small loan and bank loan, and what I am telling to you, everything he have done. Yeah, even Avas Yojana, everything he has to done. Now 100%, 200% is a third time our minister has came, will do rock. DMK. बीजेपी? बीजेपी नहीं, बीजेपी नहीं। नहीं नहीं, क्यों नहीं? Why? नो உதய சூரியன் வெள்ள நிவாரண எதுவும் செய்யலை, அதனால அவர் நை சொல்கிறார். Which party is gaining here? इस पार्टी ना एडीएमके AIDMK. Okay. एडीएमके இந்த ஏரியா கவுன்சிலர் வார்டு மெம்பர். ஆமாம், 125 மெம்பர் இருந்தேன். அம்மா இருக்கிறையில் Okay. 2014 இருந்தனர். Okay. இப்போ அதுக்கப்புறம் அம்மா இறந்த உடனே பிரிஞ்சிட்டாங்க இல்லைங்களா, இபிஎஸ் ஓபிஎஸ்ன்னு. நாங்கள் ஓபிஎஸ் பக்கம் போயிட்டோம். அம்மா தான் எங்களுக்கு ஓபிஎஸ்ஸை காட்டினாங்க. அம்மா தான் அடுத்தது ஓபிஎஸ் இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி காட்டினாங்க. அதனால் நாங்கள் அந்த அண்ணன் கூட நாங்கள் இருந்துட்டோம். நாங்கள் இபிஎஸ் கிட்டே போகல. ஆனால் இபிஎஸ் என்ன சதி பண்ணணுமோ அத்தனை சதி பண்ணிட்டு இருக்கிறா போல். அண்ணா ராமநாதபுரத்தை நிற்கிறார் ஓபிஎஸ் அண்ணன். அவர் பேர் ஓபிஎஸ். 5 ஓபிஎஸ்ஸை பணம் கொடுத்து நிற்க வச்சா. ஒரு ஓபிஎஸ்க்கு 2 லட்சம் கொடுத்து 5 ஓபிஎஸ்ஸை நிற்க வச்சான் ராமநாதபுரத்தில்.
இவரை அசிங்கப்படுத்தணும் கேவலப்படுத்தணும் பண்ணி பார்த்தான். கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கான். ஆனால் அசிங்கப்பட்ட போகிறது ஜூன் 4ஆம் தேதி தெரியும். யார் அசிங்கப்பட போகிறாங்க, யார் வரப்போகிறாங்கன்னு 4ஆம் தேதி தெரிஞ்சிடும். பிஜேபிக்கு தான் நாங்கள் ஓட்டு போட போகிறோம் இப்போ. ஏன்னா எங்கள் ஓபிஎஸ் அண்ணன் சொன்னார், நானே ரெட்டையில் நின்றவனே பெடாப்பழத்தை நிற்கிறேன், நீங்கள் வந்து மாற்றி தான் போடணும். முக்கணியில் ஒரு கணியில் நிற்கிறாரு, அதனால் இந்த தடவை நீங்கள் மாற்றி போடுங்க ஓட்டுன்னு ஓபிஎஸ் ஐயா சொல்லியிருக்காரு. அதனால் இந்த அம்மா எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டு, இதனால் இந்த அம்மா தான் ஓட்டு போடுவோம். So uncle, which party is leading here? both party ADMK, DMK. ADMK, DMK. Okay. And what about BJP? பிஜேபி தமிழ்நாட்டில் அவ்வளோ ஒன்றும் சேஃப்டி இல்லை. Okay. டோட்டலாக ஏடிஎம்கே டிஎம்கே. Okay. So the main fight is between DMK and ADMK. Okay. So are you satisfied with Modi's performance? என்ன சொல்கிறது? Are you satisfied with Modi's performance? அது நாங்கள் சொல்ல முடியாது. அப்படியே அவருடைய ஆட்சியில் போயிட்டே இருக்குது. நல்ல பிரதமராக கேட்குறாங்களா? அவர் எந்த குறையும் வைக்கல. அவர் வந்து நார்த் இந்தியாவில் அவருக்கு மெஜாரிட்டி. ஆமாம், போத் பார்ட்டி வந்து கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா, தெலுங்கானா, தமிழ்நாடு. அவருக்கு வாய்ப்பு இல்லை. तमिलनाडु में हिंदी भाषी कोई व्यक्ति मिल जाए तो एक अलग ही आनंद होता है। जी, इस बार तमिलनाडु में जो राजनीतिक परिदृश्य है वो क्या है? अभी बिल्कुल प्रकाश है जी। इस समय पर जो है ना, जी। आज तक जो है जो द्राविड़ का जो रूल जो किया हुआ है, जी। एडीएमके डीएमके ये सब जो है ना, जी। इस तमिलनाडु को सत्यानाश किया हुआ है। जी। तो यहाँ पर मैं वो करूँगा ये करूँगा बोल करके जी। यहाँ पर आकर के कुछ भी नहीं करते हैं। जी। केवल जो है इतना ही नहीं है, एक एमपी को जो है हर साल में कितना रुपया अलर्ट करते हैं, 5 करोड़ रुपया अलर्ट करते हैं ना, जी। उसमें से कितना रुपया इन लोग मतलब खर्चा करते हैं। जी। तो उसको खर्चा करने के लिए भी इनको ये नहीं है, ताकत नहीं है। जी। क्यों? इनको पता नहीं है जी। किस पे डालूं पैसा किस पे डालूं, जी। वो कुछ पता नहीं है इनको। जी। तो इसलिए जो है अभी और भी है, जी। नीट जो है, जी। जो नीट एग्जामिनेशन है, जी। उसके लिए बहुत लड़ते हैं द्राविड़ मॉडल का, द्राविड़ मॉडल रूलिंग्स जो है। जी। नीट को अभी कर दूंगा, मेरे पास मंत्र है, मेरे पास तंत्र है बोलते हैं। जी। लेकिन आज तक क्या 5 साल उनका रूलिंग चला था। जी। 39 जी। 39 एमपीज वहां पर बैठ करके क्या उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। अगर कर सकता था, जी। नहीं कर सकते करके उनको मालूम है, जी। लेकिन फिर भी वो एक्ट करते हैं। जी। क्यों? तमिलनाडु के अंदर जो है इनको वोट लेना है, जी। सिर्फ वोट लेने के लिए इन लोग काम करते हैं। जी। और बोलिए। जी, और अगर हम देखें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं और बीजेपी उम्मीद कर रही है कि इस बार 5 से 10 सीटें आ जाएंगी। आपको लगता है कि जो बीजेपी की उम्मीद है ये पूरी हो जाएगी? डेफिनेटली ये 400 सीट जो है पक्का, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, जी। पक्का आ जाएगा। जी। और हमारा फिर तीसरा बार जो है हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी का रूलिंग फिर से चालू हो जाएगा। जी, लेकिन तमिलनाडु से भी बीजेपी जीत पाएगी कुछ पक्का आएगा। जी। पक्का जी। डबल डिजिट में आएगा, देख लीजिए आप। अच्छा, डबल डिजिट में आएगा। जी। सिर्फ ये बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, कौन सा उसमें मोदी की गारंटी दे रहे हैं ये लोग, और वहाँ पर वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी न्याय की गारंटी है। तमिलनाडु की जनता किसके साथ जा रही है? राहुल गांधी उस दिन आकर के बात किया था, जी। उसमें अपना चीफ मिनिस्टर ने भी बोला था, राहुल गांधी सिर्फ एक बार आया, पूरा तमिलनाडु हंगामा मचिया करके बोलते हैं। जी। पूरा तमिलनाडु हंगामा मचिया करके बोलते हैं। जी। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने आया, तमिल के बारे में किसी क्या बात किया उन्होंने? तमिल कितना पुराना लैंग्वेज है करके नरेंद्र मोदी जी यूएनओ में जाकर के बात करते हैं। और कभी नॉर्थ इंडिया में भी जाकर के उन लोग, आप लोग को भी सबको ये पार्ट लेते हैं कि आप लोग सब जो है तमिल सीख लो, क्योंकि ये दुनिया का बहुत पुरातन लैंग्वेज है, उसको सीख लीजिए, वो अच्छा है करके बोलते हैं। लेकिन अपने नागुल जी ने क्या बताया, आकर के बोलता है वेस्ट बंगाल लैंग्वेज जो है, बंगला लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, ये सब जो है तमिल, ये सब समान करके बोलते हैं। समान कैसे हो सकता है? और इसका मतलब है उसको हिस्ट्री नहीं मालूम है। जी।
ये हिंदुस्तान पूरा दुनिया का मदर टंग है तमिल। जी पूरा इस लोग का पूरा दुनिया का मदर टंग तमिल है, लेकिन उसको बिल्कुल गट्टे में डालने की बात करते हैं राहुल गांधी जी। लेकिन उसके अंदर तमिल को तमिल 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 बोलते हैं। अपना माननीय मुगा स्टालिन जो है वो कुछ नहीं बोला उसके बारे में, यार तुमने मेरा तमिल का अपमान किया, ऐसी कुछ बात ही नहीं किया उसने। ये बिल्कुल गलत है ना जी। और आपको लगता है कि डीएम के लीडर्स इस तरह से सनातन धर्म पर अटैक करते हैं, ये चुनाव में उनको नुकसान करेगा? अपना यहाँ का जो खेल मंत्री जो है वो तो अभी बच्चा है ना, अभी उनको पता नहीं सनातन धर्म क्या होता है। और सनातन धर्म जो है हिंदू के साथ कितना जुड़ा हुआ होता है उनको पता नहीं है। अभी उनको सुप्रीम कोर्ट में बुला करके उसको डोज दिया था, तब तो बोला हाँ माफ़ कर दीजिए करके बोल के आ गया। फिर यहाँ पर आकर के बोलता, फिर वही से बोल रहे हाँ मैं जो है बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं है, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हाँ सनातन को जो हम दूर करके रहेंगे करके बोलते हैं। अभी बोलने के लिए बोलो, अभी तेरे को अभी वोट चाहिए ना, तुम बोलो अभी सनातन नहीं चाहिए बोलो, अभी दूर दूर हो जाएगा, तुम यहाँ पर नहीं रहेगा। जी। और अभी जैसे हम देख रहे हैं कि चेन्नई में कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी है, डीएमके है, एआईडीएमके है। आपको लगता है कि एआईडीएमके से बीजेपी का गठबंधन नहीं हो पाया, ये एक पार्टी के लिए नुकसानदेह बात साबित होगी? अगर गठबंधन हो जाता तो स्थिति कुछ और होती? नहीं, ये बात में अभी इस समय नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हो सकता है तो 40 के 40 हम लोग बिल्कुल लूट लेना था। एक भी जो डीएम के ऊपर नहीं जाना था अभी। लेकिन अभी क्या बोले, अभी उनका टाइम है या हमारा टाइम है ये इसका पता नहीं है। तो बिल्कुल गलत हुआ है जो भी हुआ। एक चीज़ और सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री स्टालिन कहते हैं कि बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के लिए आखिर किया क्या है कि वो यहाँ पर आकर वोट मांग रहे हैं? अच्छा, अपना मुख्यमंत्री जी को जो है इतना पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ एक्टिंग बना रखा हुआ है। अभी तमिलनाडु को उन्होंने सुधर नहीं पाया, अभी तक तमिलनाडु को उन्होंने सुधारा नहीं है। हिंदुस्तान को सुधारने के लिए आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि ये क्या कर सकता है, एक सीएम होने के नाते एक इसका कितना अधिकार होगा। तो ये बोलते हैं कि मैं हिंदुस्तान को सुधार दूंगा, कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता ना। और ये बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु के लिए क्या किया, तमिलनाडु के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने बहुत कुछ किया। अभी भी बताया था कि 10 लाख समथिंग करोड़ जो है तमिलनाडु के लिए खर्च किया हुआ है, और उसके लिए बोलते हैं ये झूठ बोलते हैं। अगर आप बोलेगा बिल्कुल सही बोलेगा। अभी बोलते, अभी जो भूकंप आया था ना, क्या बोलते हैं, पानी वगैरह अभी हुआ था ना, फ्लड वगैरह हुआ था ना, उस टाइम पर क्या हुआ, 4000 करोड़ जो है तमिलनाडु का गवर्नमेंट का हाथ में था। उस 4000 करोड़ को जो है अगर उन्होंने ठीक तरह से अगर खर्च किया होता ना, तो बिल्कुल बाढ़ नहीं होना था यहाँ पर, बिल्कुल पानी जो है अपना अपना जहाँ पर चल जाना था। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया, बल्कि उसके अलावा जो उन्होंने बोला था 98% हमने काम पूरा कर लिया करके बोला। लेकिन कितना मरा लोग, कितना मतलब उसमें बाढ़ में पस करके कितना लोग खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं ऐसे किया ना। और दूसरी बात बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर बाढ़ हो रहा था, यहाँ पर आया ही नहीं। मैं बोलता हूँ आप जो है मुख्यमंत्री है, आपने क्या किया? यहाँ पर इतना लोग मर रहे हैं, खाने पीने के लिए नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सीधा दिल्ली में जा रहे हैं। क्योंकि आपको जो है आपका पद बहुत ज़रूरी है, आपका सीएम का पद चाहिए, और फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए, और आईटी डिपार्टमेंट चाहिए, ये सब पूछने के लिए। हाँ, इसी माफिक जो है अपना मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री अभी स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी करुणानिधि ने भी जो है 2009 को एक आंदोलन किया था। उस टाइम पर क्या था, वहाँ पर श्रीलंकन तमिल लोग मर रहा था, तो उस टाइम पर उन्होंने बोला था कि हाँ अपने श्रीलंकन के लिए मैं ये कर रहा हूँ। एक्चुअली में वो नहीं, वो नाटक था बिल्कुल। उस टाइम पर जो है कांग्रेस के पास जो है मेरे को आईटी चाहिए, मेरे को फाइनेंस चाहिए, मेरे को कॉमर्स चाहिए, अगर ये देगा तो मैं समर्थन दूंगा, नहीं तो मैं समर्थन नहीं दूंगा। ऐसे करके डिमांड करके वो सब देने के बाद जो है ना, बस वापस हो गया सिर्फ 1 घंटा के लिए।
उन्होंने आंदोलन किया सिर्फ 1 घंटे के लिए, उसके बाद में वापस हो गया। जब वापस हो गया 1.5 लाख तमिल लोग वहाँ पर मर पड़े। तो इसी माफिक बिल्कुल द्रोह का काम किया है। मैं तो बोलता हूँ डीएमके जो है तमिलों के लिए बिल्कुल वेस्ट है, ये नहीं रहना चाहिए अभी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि चेन्नई साउथ से जो ये संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। हम आपको बता दें कि 19 अप्रैल को मतदान होना है। सभी पार्टियों के जो नेता हैं चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मतदाता को अब फैसला करना है, देखना होगा कि भारत का भाग्य विधाता मतदाता क्या फैसला करता है। परिणाम तो 4 जून को ही आएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, चेन्नई साउथ संसदीय सीट से प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।